کرتے ہیں تیرے مجسم کلمہ نور سے منور ہو جائیں۔ ہم تیرے ان خادموں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جو تنہا اور مایوس ہیں، بخش دے کہ وہ ایمانویل خدا ہمارے ساتھ کی حضوری کا احساس حاصل کر کے تسلی پائیں، انہیں صبر اور برداشت کی قوت عنایت کر تاکہ آخر تک ایمان میں قائم رہیں۔ ہم اپنے عزیز ملک کو تیرے سامنے یاد کرتے ہیں، تو ہمارے صدر پاکستان اور اس کے سب مشیروں کے ساتھ ہو اور ان کو آسمانی دانائی بخش دیں تاکہ وہ راستی اور انصاف سے حکومت کریں۔ اے خدا، جس نے کماری مریم مقدسہ کے ہاں اپنے بیٹے کو جنم لینے دیا اور یوں ماں کا درجہ کی تقدیس کی اور کل عالم کی خاندانی زندگی کو سرفرازی عطا کی، ہم تیری منت کرتے ہیں ہمارے گھروں، رشتہ داروں اور دوستوں پر اپنا فضل کر اور بخش دے کہ اس وقت آپس کے میل ملاپ سے سب کے دل خوش ہوں اور وہ شادمانی حاصل کریں اور مقدس بچہ کی خاطر ہم سب بچوں کو پیار کریں، اور جب وہ عید منائیں تو مقدس بچہ کی یاد کر کے خوشیاں منائیں، اور ہم کو بھی بچوں جیسا دل عطا فرما کہ ہم ان کی خوشیوں میں حصہ لے سکیں۔ اے خدا، ہم ان کو یاد کرتے ہیں جو اپنے گھروں سے دور ہیں، دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یک دل ہو کر منجی عالم میں وہ بھی خوشیاں منائیں۔ اے کریم و رحیم خدا، ہماری دعاؤں کو سن، اور جب ہم ان کو یاد کرتے ہیں جو لوگ غم کے سبب سے اس دن کی خوشی سے محروم ہیں، وہ جو بے یار و مددگار ہیں، کاش کہ وہ جنہوں نے تیری محبت کا مزہ چکھا ہے ہمدردی اور مہربانی سے ایسے بھرپور ہوں کہ جیسے انہوں نے مفت یہ درجہ پایا دوسروں کو بھی مفت دیں۔ اپنے رحم اور کرم سے جو ناتواں ہیں، جو بوڑھے ہیں، جو بیمار ہیں، جو غمگین ہیں، جو بوجھ تھلے دبے ہوئے ہیں، ان کی ضرورت کے مطابق بھی آپ ظاہر ہو کر ان کی مدد اور رہنمائی کر۔ اے خداوند یسوع المسیح، تو جو اپنے بندوں کی روحوں کو مخلصی دیتا ہے، ہم اس بڑی بھیڑ کے لیے جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، جو ہم سے پہلے اپنے دل میں امید رکھ کر زندگی کی راہ پر گامزن ہوئی اور جس کی امید اب بڑائی میں تبدیل ہوئی ہے، تیری تعریف اور ستائش کرتے ہیں۔ ہم خاص طور پر اس وقت ان تیرے لوگوں کو تیرے سامنے یاد کرتے ہیں جو کبھی تیری ولادت کی خوشی میں ہمارے ساتھ شامل ہوا کرتے تھے اور اس وقت تیرے مقدسوں کے ساتھ ایمان اور خوشی منا رہے ہیں۔ بخش دے کہ ان کے لیے ہماری محبت حقیقی اور لازوال رہے، جب تک ہم بھی ان کے ساتھ اپنے ایمان کا انعام یعنی ابدی زندگی پائیں۔ کرسمس کے اس خاص موقع پر ہم دعا کرتے ہیں تو ہم سب کو اپنی پناہ میں لے
اور یہ دن ہم سب کے لیے خوشی کا سبب ٹھہریں۔ یہ دعا ہم تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع المسیح کے نام سے مانگتے ہیں۔ آئے ہم خداوند کی حمد و تعریف کریں، کوائر کے ساتھ مل کر سیالکوٹ کنونشن گیتوں کی اس کتاب میں آخری گیت ہے، سارا جلال یسوع تیرے لیے ہے، ساری ستائش یسوع تیرے لیے ہے۔ ہم دل سے، روح سے
سب کے لیے، آفتاب کے لیے، انتخاب کے لیے یہ ہماری عبادت کو، ہماری حمد و تعریف کو پوری دنیا تک پہنچا رہے ہیں، اس لیے ہم ان کے شکر گزار ہیں اور دعا گو ہیں۔ آج کا یہ دن ہم سب کے لیے برکت کا سبب ٹھہرے۔ اے ہم دعا مانگیں۔ میں مس سمینا بھٹی جو پرنسپل ہیں کیتھیڈرل اسکول کی، ان سے درخواست کروں گا کہ وہ دعا میں ہماری رہنمائی کریں۔ راجا باتیں نہیں قدوس قدوس ہمارے زندہ خدا، یسوع ناصری آج تیرا شکر کرتے ہیں، آج تیرے دن کی پیدائش پہ اے خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہم سب کو یہ موقع عطا کیا کہ ہم آج سب یہاں اکٹھے ہوئے تیری حمد و ستائش کرتے ہیں، تیرے قدوس نام کو مبارک کرتے ہیں۔ اے خداوند آج کا یہ دن ہم سب کے لیے مبارک اور ہم سب کے لیے خوش و بھرا دن ہو۔ اس وقت یہاں پہ موجود ہر جان کو تیرے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اے خداوند تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اس وقت اس مینجمنٹ کے ساتھ ہو، اس سارے پروگرام کو، آج کے سارے دن کو تیرے سامنے لے کے چلتے ہیں، تو ان کی ہر کام میں مدد و حفاظت کر۔ تجھ سے دعا کرتے ہیں خداوند اپنے پاسبان کے لیے، ان کو دانائی دے، حکمت دے کہ وہ تیرے یسوع نام کے پیغام کو آج ساری دنیا کے سامنے پھیلا سکے اور یہ بہت سے لوگوں کے لیے ان کی زندگیوں میں تبدیلی لانے کا باعث بنے۔ تجھ سے دعا کرتے ہیں خداوند آج جہاں جہاں تیرے نام کی منادی کی جائے، تیرے نام کی ستائش کی جائے، وہاں تیری پاک حضوری ٹھہری رہے۔ تمام گرجاگھروں کے ارد گرد اے خداوند تیرا پاک فضل، تیرے فرشتگان اپنا پہرا لگائے رکھے اور کوئی ایسی شیطانی قوت وہاں پہ اپنا کام نہ کرنے پائے۔ ہم سب کی دعاؤں میں، التجاؤں میں اے خداوند تیرے یسوع نام کو جلال ملے، ہماری بندگی سے تیرے یسوع نام کو جلال ملے۔ تجھ سے دعا کرتے ہیں خداوند اس وقت پوری دنیا میں جہاں جہاں جنگ و جدل ہے، اسرائیل کے لیے، فلسطین کے لیے، یوکرین کے لیے، کشمیر کے لیے، تمام جگہوں پہ اے خداوند امن کی دعا کرتے ہیں۔ تو اپنے لوگوں کو اپنی حفاظت ملے، ہر وقت پر ہر جگہ تو ہم سب کے ساتھ ہو۔ اے خداوند تیرا بیٹا جو کہ امن اور سلامتی کا شہزادہ ہے، تو اس کے وسیلے سے پوری دنیا میں راج کر اور ہر جگہ امن و امان قائم کر دے۔ اس سے پھر دعا کرتے ہیں آج سارا دن تو ہم سب کے ساتھ ہو، تمام عبادت گاہوں میں تو اپنی پاک فرشتگان کی اے خداوند پہرے لگا اور ہمیں اپنی حفاظت میں، اپنی پناہ میں آگے بڑھنے کی توفیق دے، ہمارے کاموں سے، ہماری باتوں سے تیرے یسوع نام کو جلال دے۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع ناصری کے نام سے، آمین۔
आज से हमारी नसीहत के लिए कलाम मुक़द्दस के 3 हिस्से हैं। गौर से सुनिए, आपके सामने कलाम मुक़द्दस मौजूद है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी सहूलत के लिए रखी है। आज का पहला वेद यशायाह नबी की सहीफे से हुआ। दूसरी आयत से चौथी आयत, ये सुलेमान आपके पास ही हवाला है। यशायाह 9वां बाब। कल शालामार बाग में हम थे तो सुलेमान ने वहीं पे मुझसे हवाला मांग लिया था, जी मुझे देना है आपने, ठीक है। मुझे अच्छा लगता है अगर कोई खुद कहे कि मुझे हवाला दे ताकि मैं तलावत कर सकूं। यशायाह नबी का सहीफ़ा 9वां बाब, दूसरी आयत से चौथी आयत। मिस्टर सुलेमान इस हिस्से की तलावत करेंगे, सफ़ा नंबर 667, 667 और नई बाइबल में 850। आज का दूसरा विर्द इब्रानियों के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त, पहला बाब, पहली आयत से छठी आयत। इब्रानियों पहला बाब, पहली आयत से छठी आयत, सफ़ा नंबर 211। मिसूरब इस पैसेज को पढ़ेंगी, फिर इसके बाद हम एक गीत गाएंगे। पहली सिर्फ 2 आयात। इसलिए कि कलाम का जो असर है, कल हमने देखा है कि जब आप कोई हमदो तारीफ़ करते हैं, कोई भी अल्फाज, कोई आयत लोगों के सामने रखते हैं तो वो उसको ज़रूर दोहराते हैं, तेरा कलाम ज़माने में ए खुदाबंदा असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया। और फिर हम इसी गीत के बाद मुक़द्दस लुका की मार्फत लिखी गई इंजील दूसरा बाब 15वीं आयत से 20वीं आयत तक पढ़ेंगे। आज का दूसरा विर्द मुक़द्दस लुका की मार्फत लिखी गई इंजील दूसरा बाब 15वीं आयत से 20वीं आयत। आप पढ़े, मेरे आपने चले निमरा, ठीक है, आप पढ़ लें। फिर इसके बाद हम खुदाम की शुक्रगुजारी करेंगे आज के दिन के लिए, और पिछले पूरे महीना में जिन अल्फाजों पर हम गौर करते रहे उन्हें देखेंगे कि क्या जो तैयारी के दिन थे, इन चीज़ों का मेरी और आपकी ज़िंदगी में क्या असर हुआ है। आज क्रिसमस का त्यौहार है। हम इस त्यौहार के लिए, इस दिन के लिए खुदा यीशु मसीह की पैदाइश के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं और दुआ को हैं कि पूरी दुनिया में अमन हो, सुलह और सलामती हो। आए हम कलाम मुक़द्दस की तिलावत सुनते हैं। तूने उनकी शादमानी को ज़्यादा किया, वो तेरे हजूर ऐसे खुश हैं जैसे फसल काटते वक्त, और गनीमत की तकसीम के वक्त लोग खुश होते हैं, क्योंकि तूने उनके बोझ के जुए और उनके कंधे के लट और उन पर जुल्म करने वालों के असा को ऐसा तोड़ा है जैसे मदियान के दिन में किया था। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। आज का दूसरा विर्द खुदा के पाक कलाम में मरकूम है। अगले ज़माना में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा ब हिस्सा और तरह ब तरह नबियों की मार्फत कलाम करके इस ज़माना के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया, जिससे उसने सब चीज़ों का वारिस ठहराया और जिसके वसीला से उसने आलम भी पैदा किए। वो उसके जलाल का परतो, उसकी ज़ात का नक्श होकर सब चीज़ों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। वो गुनाहों को धोकर आलम बाला पर किब्रिया की ज़हनी तरफ जा बैठा और फरिश्तों से इसी कदर बुज़ुर्ग हो गया जिस कदर उसने मिरास में उनसे अफजल नाम पाया, क्योंकि फरिश्तों में से उसने कब किसी से कहा कि तू मेरा बेटा है। आज तू मुझसे पैदा हुआ, और फिर ये कि मैं उसका बाप हूँगा और वो मेरा बेटा होगा। और जब पहलोठे को दुनिया में फिर लाता है तो कहता है कि खुदा के सब फरिश्ते उसे सिजदा करेंगे।
खुदा का पाक कलाम हम सब के लिए बाइस बरकत है। आमीन।
कलाम मुक़द्दस में कुछ यूँ लिखा है, जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ बैतलहम तक चलें। और ये बात जो हुई है और जिसकी खुदावंद ने हमको ख़बर दी है देखें। बस उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चा को चरनी में पड़ा पाया और उन्हें देखकर वो बात जो उस लड़के के हक़ में उनसे कही गई थी मशहूर की। और सब सुनने वालों ने इन बातों पर जो चरवाहों ने उनसे कहीं ताज्जुब किया। मगर मरियम इन सब बातों को अपने दिल में रख कर गौर करती रही और चरवाहे जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब कुछ सुनकर और देखकर खुदा की तमजीद और हम्द करते हुए लौट गए। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पे उसकी बरकत हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र अदा करें कलाम के लिए और कलाम के सुनने के लिए ख़ास तौर पर। सो मैं अपने भाई अकमल सरबलान साहब से कहता हूँ कि वो चंद अल्फाज में मेरे लिए और कलाम के लिए दुआ करें। जमात बैठ जाए। हम खुदा के खादिम होते हुए आप सबको आज सुबह क्रिसमस मुबारक कहते हैं। आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं। आपकी मौजूदगी के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आपके ख़ानदानों के लिए और उन लोगों के लिए जो बैरून मुल्क हैं। आज की ये ख़ास इबादत का नाम जिसको आप क्रिसमस कहते हैं, दो लफ्ज़ हैं, क्राइस्ट और मास। क्रिसमस का जो लफ्ज़ है क्राइस्ट और मास, खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के दिन ख़ास इबादत का नाम क्रिसमस है, जिसकी हम इतनी तैयारियां करते हैं। पिछला पूरा महीना आपके सामने जो कैंडल्स लगी हुई हैं, पहला इतवार जो था आमद का, फिर दूसरा इतवार, तीसरा इतवार, फिर चौथा इतवार, इनके बारे में आप पैगामात भी सुनते रहे। अब आज का दिन वो ख़ास दिन जिसके लिए हम तैयारियां करते हैं, क्रिसमस या बड़े दिन की ख़ास इबादत है जिसमें आप शरीक हैं। इसलिए हम आप सबकी मौजूदगी के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि आप लोग आज फिर खुदा उनके घर में हैं। बहुत सारे लोग इन खुशियों से महरूम हैं, लेकिन आप बाबरकत लोग हैं कि उसके घर में बैठे उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, उसकी ताज़ीम कर रहे हैं और उसका शुक्र अदा कर रहे हैं। तीनों हवाले जो आपके लिए पढ़े गए, आपने घर में जाके ज़रूर इनको देखना है। आज तो नहीं आप देखेंगे, आज ज़्यादा काम है, आप लोगों ने बाहर जाना है, रिश्तेदारों के घरों में जाना है, आज तो टाइम नहीं है। लेकिन ज़रूर देखना कि इन तीनों हवालों की आपस में क्या मुताबिकत है। अगर मैं यार आप मौजूदा हालात को देखें तो जितने अल्फाज ये पिलर्स पे लिखे गए हैं, इनका तल्लुक़ इन तमाम कैंडल्स के साथ जो शमें हमने रोशन की आस्ता आस्ता, और फिर हम दरमियान वाली कैंडल पे आ गए। रात को इस कैंडल को, इस शमा को बिशप साहब ने ऑन किया, शमा को रोशन किया खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के ताल्लुक़ से। अगर मैं और आप इन तमाम अल्फाजों को जिनको मैं और आप सुनते रहे हैं, तो मैं सिर्फ ये आपसे कहना चाहता हूँ कि आज मौजूदा दौर में मुझे और आपको किस पैगाम की ज़रूरत है, किस सरमन की ज़रूरत है, किस हदायत की ज़रूरत है, किन बातों की ज़रूरत है कि अब ऐसे हालात में भी जहाँ लोग महफूज ना हों, जहाँ लोग आज़ाद ना हों। नाम की आज़ादी है हमें, लेकिन मैंने और आपने देखना है क्या मैं और आप शख्सी तौर पे आज़ाद हैं, क्या मैं और आप ख़ानदानी तौर पे आज़ाद हैं, क्या मैं और आप समाजी तौर पे आज़ाद हैं, क्या मैं और आप कौमी तौर पे आज़ाद हैं। ये सारे सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि आज चर्च में वो लोग भी बैठे हैं जो इंसानी हकूक़ की बात करते हैं,
جو برابری کی بات کرتے ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ جب خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کی پیشن گوئیاں کی گئیں، پروفیسیز کی گئیں یسایا نبی کے صحیفے میں، اس وقت بھی حالات ایسے ہی تھے. آزادی اس وقت بھی نہیں تھی. آج کی دنیا میں نہ تو میرا اور آپ کا معاشرہ آزاد ہے، نہ ہمارا میڈیا آزاد ہے، نہ ہماری عدالتیں آزاد ہیں. اس لیے اس ملک میں جو بدامنی ہے، جو ناانصافی ہے، اسی وجہ سے ہے. اور جب تک کسی ملک میں، کسی خاندان میں، کسی کلیسیا میں، کسی ادارے میں انصاف نہ ہوگا، امن بھی نہیں ہوگا، محبت بھی نہیں ہوگی، خوشی بھی نہیں ہوگی. امید تو میں اور آپ امید پرست لوگ ہیں، مجھے اور آپ کو تو امید رکھنی پڑے گی. اس لیے یہ خوبصورت لفظ جو میری اور آپ کی زندگی میں پائے جاتے ہیں، ان کا تعلق کلام مقدس کی ان آیات کے ساتھ بہت خاص ہے. چونکہ پہلی کینڈل جب ہم نے جلائی تھی اس امید کے ساتھ کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہوگی، تیاری کے دن، اور مسیح اس دنیا میں آیا. اسی لیے آیا کہ اس وقت بھی بدامنی تھی، اس وقت بھی لوگ آزاد نہیں تھے، اس وقت بھی غیر اخلاقی باتیں انسان کی زندگی میں پائی جاتی تھی، جس کی وجہ سے آزادی کے لیے، گناہ کی غلامی کی آزادی سے چھڑانے کے لیے، آزاد کرنے کے لیے میرا رب کا نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آیا. وہ پہلے سے موجود تھا. عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ وہ پہلے سے موجود تھا. خدا نے حصہ بہ حصہ، طرح بطرح اپنے نبیوں کے وسیلے سے انسانوں کے ساتھ بات کی، گفتگو کی. آخر میں خاص لفظ، کھولیں اپنی بائبل، عبرانی کا خط کھولیں. چند باتیں ہیں، ضروری باتیں ہیں، کرسمس کی خاص پیغام میں آپ نے ضرور اپنے ساتھ لے کے جانا ہے. مجھے خوشی ہوگی کہ اگر یہ باتیں آپ کی زندگی میں اثر کریں. عبرانیوں کا خط نکالیں. چند باتیں یہاں سے لوں گا چونکہ خدا کے کلام میں لکھا کہ اگلے زمانے میں، گزرے زمانے میں، پچھلے زمانے میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بہ حصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کیا. اس دنیا میں نبی آئے، پیغمبر آئے، رسول آئے، انہوں نے پیغام دیا امن کا، محبت کا، پیار کا، خوشی کا، راحت کا، تسلی کا، عزت کا، احترام کا. لیکن اس کے باوجود دنیا میں امن نہ ہوا، آج بھی نہیں ہے. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس زمانہ کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلے سے اس نے عالم بھی پیدا کیے. کیا کیا؟ عالم، دنیا کو اس نے تخلیق کیا. اس کا مطلب ہے کہ یہ کلمہ اس وقت بھی خدا کے ساتھ تھا. یہ بعد میں صرف تولد ہوا میرے لیے اور آپ کے لیے. ایک ہمارے لیے لڑکا تولد ہوا اور ہمیں ایک بیٹا بخشا گیا اور سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی. یہ دنیا کی سلطنت نہیں، یہ بادشاہی جو لوگ کرتے ہیں اس بادشاہت کی بات نہیں ہے. سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی اور وہ عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا، امن کا شہزادہ. چوتھے اتوار کا جو لفظ ہے پیس، دونوں طرف سے لکھا گیا. اس کی ہمیں بڑی ضرورت ہے، پیس کی، امن کی ہمیں بڑی ضرورت ہے. اور اس کا تعلق ہوپ کے ساتھ ہے، امید کے ساتھ ہے، کیونکہ ہم امید پرست لوگ ہیں، ہم شخصیت پرست لوگ نہیں ہیں. ہمارا ایمان اس پر ہے کہ دنیا میں امن ہوگا، پریشانی خوشی میں تبدیل ہوگی. اور پچھلے پلر پہ جوائے کا لفظ لکھا ہوا ہے، خوشی ہوگی.
जॉय फॉर अदर्स, दूसरों के लिए खुशी पैदा करें, दूसरों के साथ खुशी मनाएं। जॉय फॉर यू, फिर अपने लिए जॉय फॉर जीसस। अगर खुदा कहता है कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ, काश मेरी और आपकी ज़िंदगी से, मेरे और आपके किरदार से, मेरे और आपकी गुफ्तगू से खुदावंद ये कहे कि ये मेरा प्यारा बेटा है, ये मेरी प्यारी बेटी है, इससे मैं खुश हूँ। अब हम किस तरह से प्यारे हो सकते हैं घरों में, ख़ानदानों में? सुन लें, जिन लोगों को अवार्ड मिलता है, सबको नहीं ना मिलता, कई लोगों को अवार्ड मिलता है, कई लोगों को रिवार्ड मिलता है ना? सबको तो नहीं मिलता ना, लेकिन तो हर कोई करता है। तो मैं ये कहता हूं, अगर आप अवार्ड लेना चाहते हैं, रिवार्ड हासिल करना चाहते हैं, इज्जत हासिल करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अपनी साख बनानी पड़ेगी। आजकल आप सब लोग स्टेटस लगाते हैं ना, मैं भी लगाता हूँ, बोलने लगाते हैं, मैं लगाता हूँ, फिर हम फ़ोन करके कहते हैं मेरा स्टेटस पड़े ही, और मेरा स्टेटस देखा है। मैं आज नौजवानों से कहना चाहता हूँ, पहले स्टेटस बनाएं। स्टेटस तो आपने बनाया नहीं, लगाते क्या हैं भाई? मैं सबसे कहना चाहता हूँ, अपने आप से भी कहना चाहता हूँ, ये स्टेटस कैसे बनेगा? वो पहले पिलर पे जब आप चर्च में अंदर आते तो लफ्ज़ लव लिखा हुआ है ना? ये प्यार, मोहब्बत, खुदा तो है ही मोहब्बत है। मेरा और आपका खुदा मोहब्बत का खुदा है। ये उसकी मोहब्बत है कि उसने कलमे को मुजस्सम कर दिया और उसने जिस्म अख्तियार किया, यीशु मसीह की सूरत में हमारे साथ आया। और खुदा के कलाम में लिखा है, बड़ी खूबसूरत आयत है ये जो पढ़ी है बच्ची ने, आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया जिसे उसने सब चीज़ों का वारिस ठहराया और जिसके वसीले से उसने आलिम पैदा किए। वो उसके जलाल का परताव था। परताव होता है परछाया, परछाओं, साया, अक्स। काश मेरे और आपके अक्स से कुछ नज़र आए। परसों बात कर रहे थे, आजकल सब लोग ऐसे ही हैं, सीढ़ियाँ उतरनी पड़ रही है तो कहते हैं मुश्किल लगता है, टांगों में दर्द है, गिट्टे गोडे तो रह गए हैं। इसकी सबब क्या है, वजह क्या है? गोरे जब आए ना, अब भी आते हैं, उनको उर्दू इतना ज़्यादा अच्छा नहीं आता था, तो वो कुछ लगड़ा के थोड़ा सा चल रहा था मेरी तरह का बंदा। तो वो गोरा कहता है, भाई जी आज मुझे लग रहा है आपका चाल चलन दुरुस्त नहीं है। समझ आई कि नहीं आई? भाई जी मुझे लग रहा है कि आपका चाल चलन दुरुस्त नहीं है, कि आपका चाल चलन ठीक नहीं है। अब उसको इसका मीनिंग्स नहीं आते थे सही तरह से कि हम इसको किस तरह से कहते हैं, ये करैक्टर की बात है। तो मैं आपको कहता हूं नौजवानों को, आपका चाल चलन, आपकी पाकीज़गी, आपका ईमान, आपका किरदार दूसरों के लिए एक मॉडल हो, नमूना हो। नमूने ना बने, मॉडल बने, दूसरा आपकी तकलीद करे। ये स्टेटस है आपका। हमारे यहाँ इस लफ्ज़ को बड़ा गलत इस्तेमाल किया गया है, लव। अच्छे वो स्पेलिंग भी पूरे लिखे हुए हैं, LOVE। ये एल से बनता है लॉस ऑफ मनी। ये जो मोहब्बत हम में है और आप इस दुनिया में करते हैं ना दिखावे वाली, ये पैसों का ज़ाया। ओ से बनता है आउट ऑफ माइंड। बच्चे बिल्कुल ही आउट ऑफ माइंड हो जाते हैं। वो कहते हैं वो नहीं जी नहीं, तो पता वो पहले वाली मोहब्बत छड़ी नहीं जाती, वो खुदा दिया बंदा, माँ बाप की पहली मोहब्बत है। ये आज का नौजवान इस तरह से सोचता है। जी किस तरह? जी बड़ा मुश्किल है, किस तरह हम पहली मोहब्बत छोड़ दें? वो पहली मोहब्बत तो माँ बाप की है, जिसने खुदावंद की मर्जी से आपको तख्लीक किया। फिर वेस्ट ऑफ टाइम है लव, फिर ये एंड ऑफ लाइफ है, ये ज़िंदगी का अख्ताम है, आप समझ लें। तो जो जिस लव की मैं बात करने लगा हूँ वो खुदावंद यीशु मसीह का प्यार है, जिसने आपके लिए अपनी जान सलीब पर दे दी। और खुदा के कलाम में लिखा है वो उसके जलाल का परताव, उसकी ज़ात का नक्श, उसकी असलियत
اس کی ذات، اس کی اصلیت دیکھ لیں۔ میری اور آپ کی اصلیت کیا ہوتی ہے؟ جو ہوتی ہے میں اور آپ وہ نہیں بتاتے، بالکل نہیں بتاتے، وہ ہم بڑھا چڑھا کر بتاتے ہیں۔ یسوع مسیح کی ذات دیکھیں، اس کے جلال کا پرتاؤ، اس کی ذات کا نقش و کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی دہنی طرف جا بیٹھا، جو مین ٹروتھ ہے آج کی، اور فرشتوں سے اس قدر بزرگ ہو گیا جس قدر اس نے میراث میں ان سے افضل نام پایا، سب سے اعلیٰ نام۔ اگر آپ اور میں یہ کہتے ہیں نا کہ اس کا سب سے اعلیٰ نام ہے، تو پھر مجھے اور آپ کو بھی اس کے معیار تک پہنچنا پڑے گا۔ پھر آپ یہ شور نہ ماریں کہ میرا مذہب جو ہے، میرا ایمان جو ہے وہ سب سے افضل ہے۔ اگر سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے خوبصورت ہے، پھر آپ کا کردار، آپ کی گفتگو، آپ کا چال چلن پھر اس طرح سے ہونا چاہیے، عکس نظر آئے۔ وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی خدا کی دہنی طرف جا بیٹھا، کیونکہ فرشتوں میں سے اس نے کب کسی سے کہا کہ تو میرا بیٹا ہے؟ کوئی اعتراض کرتا تو کرے۔ کبھی اس نے کہیں فرشتوں کو کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے؟ کس کو کہا؟ صرف خداوند یسوع المسیح کو کہا، جو سب ناموں سے زیادہ اعلیٰ نام ہے، جس نے دنیا کو آ کر اس مشکل سے، اس پریشانی سے، گناہ کی غلامی سے آزادی دی، چھٹکارا دیا۔ آزادی بھی ایسے نہیں ملتی۔ اب تو میڈیا پہ آپ ہر روز دیکھتے ہیں جو لوگ جیلوں میں ہیں، پکڑے ہوئے ہیں، کس طرح آزاد ہوتے ہیں وہ، ان کی ضمانتیں دینی پڑتی ہیں، ان کو عدالتوں کے سامنے جانا پڑتا ہے، پھر ان کے مچل کے جمع کرانے پڑتے ہیں، اور پھر جا کے کہیں آزاد ہوتے ہیں نا۔ تو محض آپ گھر میں بیٹھے آزادی چاہتے ہیں؟ نہیں، آپ کو بھی آگے بڑھنا ہے، اپنے منہ سے اپنے گناہ کا اقرار کر کے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں گے، تب آپ اس کے بیٹے اور بیٹیاں کہلا سکیں گے۔ پھر آپ گناہ کی غلامی سے آزادی، رہائی اور چھٹکارا حاصل کر سکیں گے۔ اور اس نے کہا تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا، اور پھر یہ کہا کہ میں اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا۔ کلام کہتا ہے، میں اور آپ کیوں نہ کہیں۔ اس لیے آج کی دنیا ان چیزوں سے اس لیے بے خبر ہے، کیا ہی خوش نما ہے اس کے قدم جو خوشخبری لاتا ہے، جو اچھی خبر لاتا ہے۔ وہ اچھی خبر جو ہے نا، خواہ کرسمس ڈنر ہو، کوئی بھی ڈنر ہو یا شادی ہو، اچھی خبر وہی لاتا ہے جو کہتا ہے روٹی کھل گئی، کھانا کھل گیا، وہ اچھی خبر ہے۔ نہیں، اچھی خبر یہ ہے آپ کے لیے کہ بے شک اس دنیا کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، مشکل ہے، بدامنی ہے، پریشانی ہے، دکھ ہے، بیماری ہے، آزادی نہیں ہے، آزادی رائے نہیں ہے، اس کے باوجود میرا اور آپ کا مسیح آپ کی اس پریشانی کو خوشی میں تبدیل کر سکتا ہے، بشرطے کہ آپ اس کے قریب تو ہوں، اس پر ایمان تو لائیں۔ ایک بات انجیل مقدس سے لینا چاہتا ہوں، نکالے ذرا جو حوالہ پڑھا گیا آپ سب کے لیے مقدس لوکا کی معرفت۔ یہ حوالہ کئی دفعہ آپ نے سنا۔ اس دنیا میں ساری چیزیں، یہ خدا کا کلام، میں اکثر کہتا ہوں، کتنی کتابیں زندگی میں ہم نے پڑھی ہیں، دیکھی ہیں، رسالے، نئی کتابیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، رکھ دیتے ہیں۔ میری اپنی اس لائبریری میں کم از کم کوئی 1000 کے قریب کتابیں پڑھی ہوں گی، لیکن ایک دفعہ ہم ان کو پڑھتے ہیں اور پھر رکھ دیتے ہیں، پھر اس وقت کھولتے ہیں جب کبھی ضرورت پڑے۔ لیکن خدا کا زندہ پاک کلام، یہ بائبل مقدس ایک ایسی کتاب ہے جس کو صدیوں سے لوگ پڑھ رہے ہیں، ہر روز اس میں سے آپ کو جو پیغام ملے گا وہ تازہ پیغام ملے گا۔ آیتیں وہی ہیں، حوالے وہی ہیں، سٹائل فرق ہے، انداز فرق ہے۔ کچھ نے کہا تھا کہ انداز بیاں ہی بدل دیتا ہے رنگ محفل، ورنہ دنیا میں کوئی چیز نئی نہیں ہے، ساری پرانی ہے۔ اور اس کا حوالہ بائبل مقدس میں آپ کو بھی دوں گا۔ لیکن
खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के ताल्लुक से जब खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए तो लिखा जब फरिश्ते उनके पास से आसमान में से चले गए खुशखबरी देकर, ऐसे लोगों को खुशखबरी दी गई जो मुआशरा जिनको रादी कर देता है, समझते कुछ नहीं। आप एक भेड़ बकरी चराने वाले को क्या कहेंगे, उसके तो कपड़ों से भी स्मेल आती है। ऐसा शख्स सबसे पहले खुदा ने फिर उनको खबर दी, खुशी की खबर। और खुदा के कलाम में लिखा है जब वो वहाँ से चले गए, लिखा बस उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चा को चरनी में पड़ा हुआ पाया, और उन्हें देखकर वो बात जो उस लड़के के हक में उनसे कही गई थी मशहूर कर दी। तो सब सुनने वालों ने इन बातों पर जो चरवाहों ने उनसे कही ताज्जुब किया कि चरवाहे ये बात कर रहे हैं, भेड़ बकरियां चराने वाले ये बात कर रहे हैं। और खुदा के कलाम में लिखा है मगर मरियम इन सब बातों को अपने दिल में रखकर गौर करती रही, और चरवाहे जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब कुछ सुनकर देखकर खुदा की तमजीद और हम्द करते हुए लौट गए। काश आप लोग हम्द और तज़ीम करके वापस लौटे। हम गेट के अंदर ही रख देते हैं हम दो तज़ीम, फिर कहते हो क्वायर ने एक ही गीत फाड़ लिया, एक तारा चमका है। आप उसके मीनिंग्स तो देखें, उसको समझे तो सही। यही एक वजह है कि वो लोग जिनके अंदर खुशी आ जाती है, जिनकी ज़िंदगी सोच बदल जाती है, फिर वो गुनगुनाते ही जाते हैं, खुशी के साथ ही जाते हैं, उसकी हम्द करते जाते हैं, उसकी ताज़ीम करते जाते हैं, उसकी सताइश करते जाते हैं। आप सताइश करने वाले लोग हैं, दिल से किया करें। यशायाह नबी के सहीफे की 2 बातें लूँगा, फिर आपके साथ आखिरी कलमात जो आपके साथ जाएंगे। खुदा के कलाम में लिखा है जो आयत पढ़ी गई, जो लोग तारीकी में चलते थे, आज भी इस दुनिया में तारीकी है, उस वक़्त भी तारीकी थी। जो लोग तारीकी में चलते थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, लाइट रोशनी। और किसके वसीले से देखी? लाइट के आगे लव, खुदा की मोहब्बत के वसीले से। जो अंधेरे में थे उन्होंने रोशनी देखी, किसके वसीले से? लाइट देखी, लव के वसीले से। और लव किसका? खुदावंद यीशु मसीह का। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि इसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कुछ पर ईमान लाए लाख न बल्कि हमेशा की। मेरी और आपकी कोई जारादारी नहीं है यीशु मसीह पे, ये सारी दुनिया की बात है, पूरी दुनिया की बात है। तारीकी में चलते थे, उन्होंने रोशनी देखी, लाइट, लव के वसीले से। जो मौत के साया के मुल्क में रहते थे उन पर नूर चमका, जिन पे मौत लटक रही थी, मौत की मरहल में थे, उन्होंने जिंदगी देखी। 3 लफ्ज़ अपने साथ लेके जाएं, लव, लाइट और लाइफ। जिंदगी, ये ज़िंदगी एक गिफ्ट है, नेमत है जो खुदा ने आपको दी है। इंजॉय करें इस ज़िंदगी को, छोड़ दें एक दूसरे को। हाँ, नज़रियाती इख्तलाफ मेरा और आपका हो सकता है, लेकिन जब आपके सामने मैं खड़ा हूँ, मैं और आप दोनों खड़े हैं, हमारा इख्तलाफ होगा, कई बातों में हो सकता है, लेकिन एहतराम ज़रूरी है। एहतराम के साथ इख्तलाफ को ख़त्म करें। ज़रूरी नहीं कि जो बात मेरी पसंदगी नहीं कर रहा मैं उनको मार दूँ। हमारे मुल्क में ये सिलसिला आजकल राइज है, मेरे देश में नफ़रत का कायदा हो, जिससे इख्तलाफ उसे मार डालिए, उसे मार डालिए। नो, यीशु मसीह मेरा और आपका निजात दहिंदा, यीशु मसीह की पैदाइश का मतलब ये है कि लाइट आए, अंधेरे से निकलकर लाइट में आ जाएं। ये खुदावंद खुदा की मोहब्बत है, लाइट, लव एंड लाइफ। मैं इसलिए आया कि लोग ज़िंदगी पाएँ और कसरत से पाएँ। जो मौत के साया के मुल्क में रहते थे उन पर नूर चमका। तूने कौम को बढ़ाया, तूने उनकी शादमानी को। सेंट जॉन चर्च वालों,
खुदा ने आपको बढ़ाया है, जैसे कौम को बढ़ाया और उनको शादमानी दी। पहले हम यहीं पे इबादत करते थे, फिर वो ऊपर गैलरी आ गई, बन गई, बढ़ गए ना आप। ये खुदा का फजल है। ख़ानदानों में इजाफा हुआ, ज़िंदगियों में इजाफा हुआ, लेकिन रवैयों में तब्दीली ना आई। आए मैं और आप अपने रवैयों को तब्दील करें। तूने कौम को बढ़ाया, और सिर्फ बढ़ाया नहीं बल्कि उन्हें शादमानी दी। ये शादियाने कब बजते हैं? जब शादियाँ होती हैं, शादियाने बजते हैं, हर बंदा खुश होता है। जिसके पास वो मैले नोट होते हैं ना, वो भी नए नोट लेके आ जाता है और फिर ऐसे फेंकता है। ये अंदर की शादमानी है। काश खुदा मुझे और आपको दिल से, अंदर से शादमानी दे। मेरी और आपकी परेशानियां, मेरी और आपकी फिक्रें खुशी में बदल जाएं। आज बदल सकती हैं। आसान सा कुलिया, कोई हिसाब का कुलिया नहीं है, मैथमेटिक्स नहीं है। मुझे तो मैथ आता ही नहीं, और मैं तो मैट्रिक में भी 33 नंबर लेके पास हुआ था बड़ी मुश्किल से। तो ये बड़ा आसान सा कुलिया है। क्या कुलिया है? ऐ खुदावंद, मैं गुनहगार हूँ। खुदा तू मुझे प्यार करता है, तूने मेरे लिए अपनी जान सलीब पर दी, मर गया, दफन हुआ, मुर्दों में से जूटा। अब मैं तुझ पे ईमान लाता हूँ, तो मुझे अपनी बेटी और बेटा बना ले। तो खुदा के कलाम में लिखा उसी वक्त सेकंड्स खुदा मेरे और आपके दिल से वाकिफ़ है। वो मेरी और आपकी खताओं को माफ़ करता है, अपने बेटे और बेटियां बना लेता है। जब शादमानी अंदर आ जाती है तो लिखा है वो तेरे हुजूर ऐसे खुश हैं जैसे फसल काटते वक्त हंजुआं दे नाल रो रो के जो बीज हैं बीजते, फसल वड्डणगे खुशी दे नाल, गा गा के सदा गाया करें, खुश हुआ करें, मुंह बना के ना रहा करें, खुश होके खुदा उनकी तारीफ किया करें, खुश होके एक दूसरे के साथ मिला करें, इख्तलाफ के बावजूद मिला करें, लड़ाई के बावजूद मिला करें, नाराज़गी के बावजूद मिला करें, रंजीदगी के बाद जैसे भी हालात हो। तो शक्ल से वैसे पता चल जाता है, शक्ल से पता चल जाता है कि रंजीदा है कि नहीं है। लक्ष्य पाओ छुप न सकेगा राज जो दिल का गहरा, और दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। तो खुदा के कलाम में लिखा है वो तेरे हुजूर ऐसे खुश हैं जैसे फसल काटते वक्त और गनीमत की तकसीम के वक्त लोग खुश थे। काश खुदा मुझे और आपको खुशियाँ दे। वो लिखा है जॉय, आज खुशियाँ लेकर जाए खुदा उनके घर से। और ये कैसे मुमकिन है? जब मैं और आप एक दूसरे की हैसियत को माने, जैसा भी है, जिस हालत में भी है। खुदा भी ने तो मुझे और आपको कबूल किया हुआ है। कितने फ़र्क डिज़ाइन है। ये चर्च में कितने डिज़ाइन बैठे हुए हैं, खूबसूरत डिज़ाइन बैठे हुए हैं। खुदा ने बनाया है मुझे भी और आपको भी, अपनी शबीह पर बनाया है। मुझे फ़ख्र है कि उसने अपनी शबीह पर मुझे और आपको बनाया। तो क्यों ना ये खुशियाँ एक दूसरे के साथ बांटें और एक दूसरे की इज़्ज़त और एहतराम करें, ताकि इस साल का ये क्रिसमस मेरे लिए, आपके लिए बरकत का सबब ठहरे और हमारे मुल्क में अमन हो, हमारे ख़ानदानों में अमन हो, हमारे अदारों में अमन हो, हमारी शख्सी ज़िंदगी में अमन हो, और इस ज़िंदगी को एंजॉय करें जो खुदा ने आपको दिया है। इस साल का ये क्रिसमस आप सबको बहुत बहुत मुबारक है। थैंक यू वेरी मच। खुदा की हम दो तारीफ़ करेंगे, अपने हदिये, नजराने, शुक्रगुजारियाँ खुदा के हुजूर गुजराने के। 126 ज़बूर नंबर 126 निकाले जी। खुदा
हदियों को भी अपने हुजूर कबूल फरमा और हम सबको भी, क्योंकि ये पैदाइश कबूलियत की पैदाइश है, ये मोहब्बत की पैदाइश है जिसकी हम खुशियाँ मनाते हैं। मिन्नत करता है खुदा तू देने वालों को बरकत दे। जिन लोगों ने हदिया इकट्ठा करने की खिदमत किया, हम इनके लिए भी तेरा शुक्र करते हैं, इंतज़ामिया के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। जिन बच्चों ने, जिन नौजवानों ने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मेहनत की तेरे घर की खूबसूरती के लिए, प्ले के तौर पर मुख्तलिफ़ तरह से हम सबको दुआ में याद करते हैं। आने वाले वक्त में सबको ढेरों खुशियाँ दे। इस सदी की तकदीस कर दुआ खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से मांगते हैं। जमायत बैठ जाए, देखते हैं। मेरे अपने बच्चों ने, सल्तनत और शकील ने वहाँ बैठ के बड़ी तसल्ली से इन सारी बातों को देखा। आप सबको सलाम भी देते हैं। इसी तरह से वो लोग जो हमारी इबादत में इस तरीके से शामिल होते हैं, हम उनके भी शुक्रिया अदा करते हैं। और इस वक्त ख़ास तौर पर जिन ख़ानदानों में खुशियाँ आई हैं, कोई नया शादीशुदा कपल बैठा है, कोई नया मॉडल है भाई, हम खुश हो के उनको, तेरा बाइक देखे यार, हम खुश हो के उनको वेलकम करना चाहते हैं। और फिर इसके बाद जिन लोगों ने डेकोरेशन की, जिन लोगों ने कुर्सियाँ उठा के रखी आपकी सहूलत के लिए, जिन लोगों ने गीत गाने में, हमदो सना में अपना गला इस्तेमाल किया, अपने हाथ इस्तेमाल किए, हम उनके लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं। भाई यकूब दास जो बाहर बैठे हैं, उनकी बहुत बड़ी खिदमत है। जब वो बाहर बैठे होते हैं, हम यहाँ आज़ादी के साथ इबादत कर रहे होते हैं। इंतज़ामिया का एक एक शख्स, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे साथ ताउन करते हैं। कई दफ़ा हम भी एक दूसरे के साथ नाराज़ होते हैं, लेकिन हम मिल के काम करते हैं, हम एक दूसरे की बात को सुनते हैं, हम एक दूसरे का मशवरा मान लेते हैं। अवार्ड ऐसे नहीं मिलता, इज़्ज़त ऐसे नहीं मिलती, बनानी पड़ती है। और हर बंदा कहे कि मुझे भी ये चीज़ दें। अब आपको अवार्ड तो नहीं मिल सकता ना, काम तो करें। इसलिए मैं इंतज़ामिया का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। सेक्रेटरी साहब, आप आके कुछ कहना चाहते हैं तो आए। गला खराब, चलें। मिसेस शीबा दाऊद, उन लोगों के लिए भी जिन्होंने खुदा उनके घर के इस ऑल्टर को खूबसूरत बनाने के लिए तोहफे और तोहफ़े दिए, उनके लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आपके हदियों के लिए, इतने खूबसूरत केक जो आपने दिए, उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और हम आपकी मोहब्बतों के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। जी मैडम। मेरे खानदान की तरफ से आप सबको मैरी क्रिसमस एंड एडवांस हैप्पी न्यू ईयर। जैसे कि हमारी कलीसिया की तरफ से, हम सब की तरफ से हमारी रिवायत है कि हम अपने पासवान को और उनकी मिसेस को इस खुशी के मौके पर तोहफे तोहफ़ से नवाजते हैं और ये सारी खुशियाँ आपस में बांटते हैं। इसलिए मैं अपने पासवान को और उनकी मिसेस को ताकत दूंगी कि वो सामने आए और अपने गिफ्ट वसूल करें। चलिए ये सिस्टर कलसुम आप मिसेस शीला मैम को बुके पेश करें और सेक्रेटरी साहब पारी साहब को वन बाय जी क्लैपिंग करें। इधर देखिए, ऐसा सामने, ऐसा सामने जी, सामने। इसी में आप सबको सलाम। सॉरी मेरा गला खराब है, इसलिए नहीं आ सका। फिर भी भाई साहब ने मजबूर किया। मेरे से आप सबको क्रिसमस की ढेरों खुशियाँ मुबारक। हमारा बेटा जो 1.5 साल से दुबई में था, तो कल उसने आना था फ्राइडे को, वो ज़रा लेट हो गया। हम चाहते कि आप वो आए, उसको भी वेलकम करते हैं। एक सेंट जॉर्ज की रिवायत है, जो भी आते हैं हम उसको वेलकम करते हैं। इधर उधर जल्दी प्राप्त कर देते हैं। आगे टाइम में हम मजबूर हो जाते हैं कि इमरजेंसी में कुछ भी नहीं हो सकता। ये मैं इनको नहीं कह रहा, आप लोगों को भी कह रहा कि जो अभी नया जोड़ा भाई साहब ने कहा कोई भी नहीं करता है, तो मुझे पता है कि सामने एक जोड़ा भी बैठा होगा, तो उसके लिए हम बुका लेके आए हैं। मगर ये बात है कि मैं घर में खाना बनाऊँ और ऐसे लोगों तक पहुँचाऊँ, ऐसे लोगों को दूँ जिन्हें खाना मिल सकती है।
उन्होंने घर से शुरू किया और यहाँ तक आ गई बात कि हर रोज उन्होंने लंगर बनाना शुरू कर दिया, लोग वहाँ से खाते थे और वो तंजीम काफी चल रही है। मुझे उन्होंने कॉल किया कि हम आपकी चर्च आना चाहते हैं। तो आज वो टीम हमारे चर्च में आई है, जिसे जब आप चर्च से बाहर जाएंगे वो आपकी खिदमत करेंगे। तो कुछ कहना चाहेंगे? ओके, सो मेरा नाम है और मैं इस ट्रस्ट की रिप्रेजेंटेटिव हूँ। बेसिकली ये 3 दोस्तों ने स्टार्ट किया है, मुस्ता भाई, हुज़ैफा भाई और कासिम भाई। हुज़ैफा भाई की अम्मी काफ़ी अर्से से अपने दस्तरखान लगा रही थी अपने घर के बाहर, और वो देखती थी कि भाई रोज़ रश बढ़ रहा है। तो फिर उन्होंने रियलाइज़ किया कि अगर हमने भूख पे काम करना है तो इसका मतलब ये कि एक तरफ से खाना बचाना है और एक तरफ से खाना बांटना है। तो वी सोली वर्क ऑन कि जो हमारा एक्सेस फूड है वो ज़ाया होने की बजाय हम उसको बांटें ताकि लोग कोई भूखा ना सोए। सो हमारे दिन हफ्ते में 5-6 दिन हमारे कार्ड्स पे खाना लगता है, अच्छा म्यारी खाना सिर्फ 60 रुपीज़ में लाहौर की 5 लोकेशंस में वो मिलता है। और वही खाना दफ्तर में भी आता है, वही खाना बाहर लोगों को खिलाते हैं। तो हम इस तरह जो है हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, हम स्मॉल स्केल फार्मर्स को एम्पावर करते हैं और हम रिस्क बचाव पे काम करते हैं। जिस तरह उन्होंने कहा कि जो बड़ी बड़ी तंजीमें बाहर आती है उनको कहते हैं कि खाना है तो कलेक्ट कर लें। सो दैट्स हाउ वी वर्क। तो और हमारी प्रॉपर हम यूथ को, जो छोटे बच्चे हैं, हम उनको भी इस काम में अपने साथ लगाया हुआ है ताकि वो अपनी पहचान ढूंढ सकें इस माशरे में। शुक्रिया। थैंक यू। भूखों को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, जिसके पास कपड़े नहीं उसको देना, तो ये बड़ी खास मिनिस्ट्री है। इसलिए जब आप बाहर जाएंगे, अगर वो आपको कुछ चीज़ें देते हैं आप ज़रूर लें, अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो दूसरे को दे दें। और अगर उनके वहाँ पे कुछ बैनर लगा होगा, आप ले लें, उनसे इंफॉर्मेशन लें ताकि आप अपने घर में भी मंगवा सकें, किसी दूसरे की मदद के लिए आप उनसे ले सकें। मेरी दुआ है कि ऐसे लोगों को खुदा अपनी खिदमत में इस्तेमाल करें, जैसे मेरे और आपके मुनजी यीशु मसीह ने मुझे आपको हुक्म दिया और सिखाया। आए हम सब मिल कर कहें, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी। हमारे रोज़ की आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं तू भी हमारे कसूर में मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़े बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत चला हमेशा तक तेरे। कलमाते बरकत के लिए आप सब अपने पाँव पे खड़े होंगे। खुदा का इत्मीनान जिस समझ से बिल्कुल बाहर है, आप तुम्हारे दिल और ख्यालों को खुदा यीशु मसीह में महफूज रखे। और खुदा बाप, बेटे और उसकी बरकत हम सब के साथ, कुल ईमानदारों के साथ, हम सब की तमाम अजीज़ व कारब, रिश्तेदार, बहन भाइयों, बच्चों, बुजुर्गों, दोस्तों, मुसायों, खुदा के खादमों के साथ, जितने बैरून मुल्क लोग हैं उनके साथ, जो गमज़दा लोग हैं उनके साथ, जो जंगज़दा हैं उनके साथ, जो मुश्किल में हैं उनके साथ, अब से लेकर अब तक होती रहे। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से जमायत बैठ जाए। हमारी दुआ है खुदा का खादिम होते हुए सेंट जॉन्स चर्च का प्रेस्बिटेरियन इंचार्ज होने की हैसियत से, डायसिस ऑफ रायवंड का डीन और चर्च ऑफ पाकिस्तान का स्पोक्स पर्सन होने की हैसियत से आप सबको क्रिसमस मुबारक कहने के साथ साथ ये दुआ गो हूँ कि इस साल का ये क्रिसमस हम सब के लिए, डायसिस ऑफ रायवंड के लिए, सेंट जॉन्स चर्च के लिए, चर्च ऑफ पाकिस्तान के लिए और आलमगीर कलीसिया के लिए बरकत, खुशी, राहत और तसल्ली का सबब ठहरे। खुदा बाप, बेटे और उल्कुस के नाम से आमीन।